Hello student, today our class BA first year. Today we will discuss about our next poem, To His Poem Stress, To His, To His, To His Poem Stress, To His Poem Stress, Stress यानी प्रेमी का बोल दो, लवर बोल दो, वो यानी होता है शर्मीली, शर्मीली प्रेमिका लवर टू हिज पोएम मिस्ट्रेस. We will discuss about the we are discuss about the introduction to the poem. First of all, Andrew Marvell composed by To His Poem Stress composed by Andrew Marvell. किसके द्वारा लिखी गई है? एंड्रू 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 मार्वेल. एंड्रू मार्वेल टू हिज पोएम स्ट्रेस, को यानी शर्मीली प्रेमिका किसकी? एंड्रू मार्वेल की. इसके बारे में इस पोएम में कोई हमें बताता है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू द पोएम. Introduction to the poem. To his poem mistress, Andrew Marvell was born on Andrew Marvell Andrew Marvell Andrew Marvell Andrew Marvell was born Andrew Marvell was born 31st March 31st March 31st March 1621 and died on 16 August 16 August 16 August 1678. Andrew Marvell was an English metaphysical poet. He was a English metaphysical he was an English metaphysical poet, satirist, and politician and he was an English metaphysical poet, satirist and politician who sat in the who sat in the House of Commons House of Commons
You know student, House of Commons as a Lok Sabha in our India. House of Commons एक ऐसे है जैसे लोकसभा और राज्यसभा है, ऐसी हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड में भी एक संसद का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स में भी ये बैठे थे, मतलब उसके भी सदस्य रहे थे। ये पॉलिटिकल भी थे, मतलब राजनीतिक भी, पॉलिटिशियन भी थे। पॉलिटिशियन हु सैट इन द हाउस ऑफ कॉमन्स एट वेरियस टाइम, at various time between 1659 and 1678 during the Commonwealth parade, during the Commonwealth parade, during the Commonwealth parade, during the Commonwealth parade, he was a colleague. He was a colleague. Andrew Marvell was born 31st March 1621 and died on 16 August 1678. He was an English metaphysical poet, satirist, व्यंग्यकार and politician, राजनीतिक आध्यात्मिक कवि, व्यंग्यकार और राजनीतिज्ञ थे। Who sat in the House of Commons as a parliament in India? As you know, House of Commons at various time between 1659 and 1678. During the Commonwealth parade, he was 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 colleague, he was colleague and friend of colleague यानी साथी और दोस्त। कलीग होता है एक ही जगह जो साथ साथ काम करते हैं, कंपेनियन, और फ्रेंड को आप जानते ही हो, हरदम साथ रहते हैं। कलीग होता है जो किसी कंपनी या किसी इंस्टीट्यूट में एक साथ जो काम करते हैं, वो होते हैं कलीग्स, बोलते हैं ही इज माय कलीग। फ्रेंड बचपन का दोस्त, यार, या फिर बाद में बने। जब ये कलीग बने तो अब नाम ही फ्रेंड बन गए। ही वाज कलीग एंड फ्रेंड ऑफ, ही वाज ए कलीग, he was a colleague and friend of, he was a colleague and friend of John Milton. He was a colleague and friend of John Milton was the greatest poet in English literature. You know your syllabus in John Milton's poem include On a Blindness और एंड 23rd बर्थडे। दो पोयम आपके सिलेबस में भी जॉन मिल्टन की है, बहुत महान कवि है, जो कि 44 एज में पूर्ण रूप से अंधे हो गए थे।
जॉन मिल्टन, आपके सिलेबस में भी इसकी पोयम है ऑन ए ब्लाइंडनेस एंड अदर परहैप्स 23rd बर्थडे, ऑन इज 23rd बर्थडे। शायद ये दोनों पोयम ऑन इज ब्लाइंडनेस तो 100% है, और सेकंड पोयम जो ऑन इज 23rd बर्थडे है उसका थोड़ा कंफ्यूजन है, पर वो भी है शायद जॉन मिल्टन, जो कि किसके दोस्त थे, एंड्रयू मार्वेल के, एंड्रयू मार्वेल के कलीग भी थे और फ्रेंड भी थे, साथ ही काम भी करते थे, साथ काम करते थे, पोयम वगैरह लिखते थे और दोस्त भी थे। जॉन मिल्टन, हिज पोएम्स रेंज फ्रॉम द लव सॉन्ग, हिज पोएम्स रेंज from the love song, from the love song, from the his poems range from the love song to his poem stress, from the love song to his poem stress, to his poem stress, to evocations of an to evocations of an एरिस्टोक्रेटिक यानी उच्च कुलीन कंट्री हाउस, एंड गार्डन upon Appleton House, upon a colleague and friend of John Milton, his poems range from the love song to his poem stress। जो पोएम स्ट्रेस जो पोएम है एंड्रयू मार्वेल की, ये एक लव सॉन्ग है जो कि अपनी प्रेमिका के प्रति एंड्रयू मार्वेल बताता है अपन कोई कविता के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टू इवोकेशंस ऑफ एन एरिस्टोक्रेट कंट्री हाउस एंड गार्डन in upon Appleton House and the garden, the political address upon Appleton House, upon Appleton House, upon Appleton House, upon Appleton House, upon Appleton House and the garden, ये दोनों पोएम है द एप्पलेटन हाउस एंड द गार्डन। और पॉलिटिकल एड्रेस पे एक पोएम है इनकी, कुछ पॉलिटिशियन थे, आपको ये याद रखना है और आपको अपने एग्जाम में लिखना भी है। अपॉन एप्पलेटन हाउस एंड द गार्डन, ये आपको रिमेंबर अगेन एंड अगेन। अपॉन एप्पलेटन हाउस एंड द गार्डन, द पॉलिटिकल एड्रेस, the political address and Horton Court, and Horton Court, ये जो एन हॉर्टन कोर्ट है ये किसका है, ये पॉलिटिकल, ये जो राजनीति के ऊपर बेस्ड है पोएम एन हॉर्टन कोर्ट। और ये किसके लिए है, अपॉन क्रॉमवेल रिटर्न्स फ्रॉम आयरलैंड, अपॉन
क्रॉमवेल रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। जो ये हॉल्टेन रोड है अपॉन क्रॉमवेल रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। जो क्रॉमवेल है, मैंने आपको बताया था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, आप वीडियो देखना, उसमें जो क्रॉमवेल है इसका भी शासन रहा था। और ये जो क्रॉमवेल था ये एक धर्म के प्रति सजग वाला वो था एक शासक, और इसने भी इंग्लैंड पर शासन किया। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आप शायद 4 वीडियो उनको बार बार देखना। क्रॉमवेल रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड एंड हॉल्टेन रोड एंड टू मार्वेल ने इसके ऊपर लिखा था। मार्वेल फर्स्ट पोएम मार्वेल फर्स्ट पोएम which were written in Latin, which were written in Latin, which were written in Latin, which were written in Latin and Greek and published when he was and published he was still at Cambridge. Published he was still at Cambridge. Marvel first poem which was written in Latin is the language, you know, and Greek is the language, and published he was still at Cambridge. Lamented a visitation of the lamentation यानी विलाप करना, विलाप, a visitation of lamentation of a visitation of the visitation of the प्लेग कब हुई थी? किसका विलाप करना था? लैमेंटेशन ऑफ ए विजिटेशन ऑफ द प्लेग, ये बीमारी है उसका विलाप चल रहा था। एंड सेलिब्रेटेड द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, मतलब दोनों के बीच का समय था। एक तो प्लेग जैसी महामारी का आने का विलाप चल रहा था, और दूसरा एंड सेलिब्रेटेड the birth of a child, celebrated the birth of a child, celebrated the birth of a child to King Charles first. एक तो प्लेग का आना हुआ, विजिटेशन ऑफ प्लेग बीमारी, महामारी, एंड
सेलिब्रेटेड द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड टू किंग चार्ल्स फर्स्ट। चार्ल्स फर्स्ट के बेटे का जन्मदिन था, जो किंग था, इंग्लैंड का राजा था चार्ल्स फर्स्ट। एंड क्वीन हेनरिएटा मारिया, एंड क्वीन हेनरिएटा मारिया किसकी मिस्ट्रेस थी? चार्ल्स फर्स्ट की मिस्ट्रेस हेनरिएटा मारिया। इन दोनों के बेटे का जन्मदिन और प्लेग का आगमन। हॉल्टेन wrote a political poem dated to early 1650। हॉल्टेन wrote Holden wrote a political poem. Holden wrote a political poem. Political poem. Holden wrote a political poem dated to early 1650. So, some lyric poem. Andrew Marvell lyric poem. कुछ लिरिक पोएम भी याद कर लेना। ऑन ए ड्रॉप ऑफ ड्यू, फर्स्ट ऑन ए ड्रॉप ऑफ ड्यू, ऑन ए ड्रॉप ऑफ ड्यू, द कोरोनेट, eyes and tears, young love, the unfortunate lover, ये इनकी कुछ लिरिक पोएम थी, आपको याद रखनी है। ऑन ए ड्रॉप ऑफ ड्यू, द कोरोनेट, आई एंड टीयर, यंग लव, द अनफॉर्चुनेट लवर। यहाँ पे हमारा जो एंड्रू मार्वल का इंट्रोडक्शन टू द पोएट है वो खत्म हुआ। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें इसकी समरी के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।